Hello student, this is Umar Kaz Khan. Good morning to all of you. Today we will discuss about the two-way slab design procedure and some IS code recommendation that is for the design of the two-way slab. Earlier we have also studied about the type of slab and one-way slab, two-way slab, etc. So here comes the two-way slab. The two-way slab are those slab which are supported on all the four edges and having Ly by Lx ratio lesser than equals to 2. As we know, in this type of slab, bending occurs in both the direction, that is in the longer as well as in the shorter direction. There are two types of a two-way slab. One is the corner held down or corner not held down. What is it? What is the corner held down? Corner held down means the corners are prevented from lifting up, as we know that due to the loading the edges may lift upward. So in this type of slab, torsion reinforcement are also provided to prevent the lifting. So when a two-way slab is loaded, the corner gets lifted up. These corners can be prevented from lifting by providing some fixity at the support by means of beam or wall. Such type of slab in which corners are prevented from lifting are called as restrained slab. In this slab, special torsion reinforcement are provided. So in this type of slab, corners are prevented from lifting are called as restrained. In this type of slabs, torsion reinforcement is provided at the edges to prevent cracking of the corners. These are also called as corner with held down. The Indian standard specifies two ways of providing flexibility. What are the two ways? The two ways are: slab is simply supported on all the four edges by beams and the beams and slab are cast monolithic. मीन्स स्लैब जब हम बना रहे हैं तो उसमें बीम और स्लैब को एक साथ ही कास्ट कर दे रहे हैं. दूसरा है कि उसके ऊपर कोई सुपर स्ट्रक्चर बना दे. The slab is supported on the edges by four walls and there are superstructures walls above the slab. Unrestrained slab. Unrestrained slab क्या है? Corner not held down भी कहते हैं इसको. The slab in which corners are not prevented from lifting are called as unrestrained slab or slab with corner not held down. Next we proceed to the IS code method of design. What are the various IS code recommendation? We go for the two types of two-way slab, that are: first one is the restrained, corner held down. So in the restrained slab, when the corners of the slab are prevented from lifting, the slab may be designed. There are some recommendation in IS 456-2000 in the annexer D, page number 90 of your IS code. When the corner of the slab are prevented from lifting, the slab may be designed as there are 11 points. So in this case, bending moment is calculated using the formula mx is equals to alpha x wlx square and my is equals to alpha y wlx y square. यहाँ दोनों जगह पर lx है. Formula is all right. And alpha x and alpha y are the coefficient that are given in the table. टेबल आपका जो है वो IS कोड में भी दिया है. IS कोड में टेबल नंबर 26 है ये. In IS code it is on the table number 26. So for different condition, the value of alpha x and alpha y for particular Ly by Lx ratio is mentioned in the table 26 of IS 456. All the terms small w, mx, my, lx, ly are as usual. Mx and my are the moment on the strip on the width spanning lx and ly respectively. lx और ly को जानते हैं, शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन का लेंथ है वो. 1.2 clause says that slab are considered as divided in each direction into middle strip and the edge strip as shown in figure. जैसे फिगर में देख रहे होंगे तो जो भी आपका एक पैनल होगा, एक पैनल को हम मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मिडिल स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो 3/4 ऑफ लेंथ ऑफ द पैनल होगी. जैसे एल वाई लॉन्गर स्पैन है तो लॉन्गर स्पैन का 3/4 उसका मिडिल स्ट्रिप होगा और उसका एज स्ट्रिप एल वाई बाई 8 होगा. इसी तरीके से अगर हम शॉर्टर की तरफ देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो शॉर्टर स्ट्रिप होगा तो शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग, ये शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग है. पहला वाला जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, राइट साइड में जो दिख रहा है वो लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग है और जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है वो आपके शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग है. तो इस तरह से हम 3/4 LX और 3/4 LY
हम इसको मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब अगर हम इसको शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग मिडिल स्ट्रिप निकालना होगा तो शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग हमको मिडिल स्ट्रिप 3/4 LY होगा, जबकि शॉर्टर लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग मिडिल स्ट्रिप आपका 3/4 ऑफ LX होगा। The maximum bending moment is calculated depending upon the condition of the panel, and no distribution shall be made as per clause 1.3. Clause number 1.4 says that clause number 4.1.4 is stated here. Tension reinforcement provided at the mid span in the middle strip shall extend in the lower part of the slab to 0.25 time of L of a continuous edge or 0.15 टाइम्स ऑफ एल ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस एज। कॉन्टिन्यूस एज का मतलब कि पैनल के अगल बगल भी कोई आपका जो भी पैनल होगा, मतलब स्लैब एक कॉन्टिन्यूस स्लैब की तरह, मतलब अगर कोई बड़ा सा आप एरिया ले लो, उसको अगर आप स्लैब में मान लीजिए 50x50 मीटर का कोई आपको बनाना है, कोई इतना बड़ा आपके पास एरिया है, तो उसको आप 4x5 या 6x5 ऐसे कुछ स्ट्रिप में बांटोगे। मतलब कुछ ऐसे पैनल्स होंगे, बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें कुछ रूम्स होंगे, तो रूम अगल बगल के रूम का डिस्ट्रीब्यूशन, अब एक रूम ऐसा है जिसके बगल में भी कोई रूम है, तो क्या होगा कि वो कॉन्टिन्यूस हो गया, बगल के रूम का जो एक आपको एज मिल रहा होगा वो कॉन्टिन्यूस एज हो गया। और मान लीजिए कोई एकदम कॉर्नर पे रूम पड़ रहा होगा तो वो डिसकॉन्टिन्यूस एज हो गया। तो ऐसे हमने एक पूरे एरिया को पैनल में बांट दिया। पैनल में बांटने के बाद उसकी कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी वहाँ से हम देख रहे हैं, जिसको हम अभी लास्ट में एनिमेशन वीडियो के थ्रू हम देखेंगे उसको। Clause number 1.5 says that over the continuous edge of the middle strip, the tension reinforcement shall extend in the upper part of the slab at a distance of 0.15 term of L from the support. मतलब इसको जो भी आपका कॉन्टिन्यूस एज पे आ रहा है या डिसकॉन्टिन्यूस एज, तो जो भी आपका मिडिल स्ट्रिप है, तो मिडिल स्ट्रिप को जो कि आपका मेन इन्फोर्समेंट उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हम 0.15 टाइम्स ऑफ एल, मान लीजिए अगर एक्स डायरेक्शन में है तो एल एक्स हो जाएगा, और वाई डायरेक्शन में है लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग तो एल वाई हो जाएगा। तो इतना हम जो है टॉर्जन इन्फोर्समेंट को कम से कम 50% को हम 0.3 टाइम ऑफ एल तक आगे की तरफ इम्बेड करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, एज स्ट्रिप में बढ़ा देते हैं इसको। और जो मिडिल स्ट्रिप का है उसको हम ऊपर की तरफ 0.15 टाइम फ्रॉम सपोर्ट तक हम उसको ऊपर की तरफ बेंट अप करते हैं। तो इस तरह से हमारा 1.5 होता है। 1.6 क्लॉज कहता है कि एट अ डिसकॉन्टिन्यूस एज नेगेटिव मोमेंट में राइज, जो भी डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएंगे एज है वहाँ पर मान लीजिए अगर नेगेटिव मोमेंट हो रहा है तो दे डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ फिक्सिडिटी एट द एज ऑफ द स्लैब, बट इन जनरल टेंशन इन्फोर्समेंट इक्वल टू 50% of that provided the mid span extending 0.1 time of L into the span will be sufficient। तो भी हम जो है उसको 50% जो आपका मेन इन्फोर्समेंट में आ रहा था उसको हम ऊपर की तरफ इस तरह से बेंटअप कर देते हैं। क्लॉज नंबर 1.7 says that reinforcement in edge strip parallel to the edge shall comply with the minimum। जो भी मिनिमम क्राइटेरिया था एज स्ट्रिप में जो हम रिइंफोर्समेंट रखते हैं वो मिनिमम रिइंफोर्समेंट क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए रखते हैं। तो सिंपली हम मिनिमम जो रिइंफोर्समेंट होता है उसी को हम प्रोवाइड कर देते हैं एज स्ट्रिप में। तो पॉइंट नंबर 1.8 क्या, क्लॉज नंबर 1.8 से दैट टॉर्जन इन्फोर्समेंट, अब इसमें टॉर्जन इन्फोर्समेंट एक टर्म आ जाता है। वो क्यों देना पड़ता है, क्योंकि भाई कॉर्नर है, कॉर्नर पे आपका लिफ्टिंग हो जाएगी, लिफ्टिंग होने को प्रिवेंट करने के लिए आपको टॉर्जन इन्फोर्समेंट देना पड़ता है। ये इन्फोर्समेंट देने के लिए हम टॉर्जन इन्फोर्समेंट का जो लेंथ होता है वो एटलीस्ट LX/5 रखते हैं, और इसका जो एरिया होता है इसको हम 3/4 ऑफ AST मैक्सिमम रखते हैं। जो भी स्पैन का मैक्सिमम, जैसे मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट आएंगे तो एक्स डायरेक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट के हिसाब से जो एरिया आया होगा, और इसी तरह से वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से जो मैक्सिमम कुछ एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट आया होगा, तो इन सभी में से जो सबसे मैक्सिमम होगा उसके हिसाब से उसका 3/4 लेकर के हम एरिया ऑफ टॉर्जन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और उसकी हमने लेंथ को क्या बताया, इसकी लेंथ LX/5 रखते हैं। इसी चीज़ को क्लॉज नंबर 1.8 में लिखा गया है। इट स्टेट दैट इट शैल बी प्रोवाइडेड एट एनी कॉर्नर and when the slab is simply supported on both the edges meeting at the corner, it shall consist of top and bottom reinforcement। तो टॉप में भी देते हैं, बॉटम में भी दे देते हैं। तो 4 कॉर्नर हो गए, 4 कॉर्नर टॉप के लिए, 4 कॉर्नर बॉटम के लिए। तो विद ईच लेयर विद
bars placed parallel to the side of the slab and extending from edge to a minimum distance of 1/5 of the shorter span यानी LX by 5. Area of reinforcement shall be 3/4 of the area required for maximum mid span movement in the slab. तो इस तरह से हम टॉर्जन इन्फोर्समेंट देते हैं. क्लॉज नंबर 1.9 says that torsion enforcement equal to half of that shall be provided at a corner contained by edges over only one in which the slab is continuous. अगर स्लैब कॉन्टिन्यूस है तो हम इसको केवल टॉर्जन इन्फोर्समेंट जो है उसका हाफ ही, जो 1.8 में है उसका हाफ ही प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरह से आपका एक टेबल होता है. टेबल नंबर 26 I456 2000 में दिया हुआ है. तो इसको हम यहाँ से, जैसे अब इंटीरियर पैनल है, इंटीरियर पैनल में एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो मान लीजिए 1.5 है. तो इंटीरियर पैनल आप यहाँ देख रहे होंगे. तो इंटीरियर पैनल में 1.5 के लिए 0.053 0.041 है. अगर मान लीजिए किसी इंटरमीडिएट का निकालना होगा तो हम इंटरपोलेशन करके निकालेंगे. दीज आर द वेरियस केसेस, 9 केसेस. इंटीरियर पैनल, 1 शॉर्ट एज, 1 लॉन्ग एज, 2 एडजेसेंट डिसकॉन्टिन्यूअस, 2 शॉर्ट एज डिसकॉन्टिन्यूअस, सारे जो भी कंडीशन है इसको हम अभी आगे लास्ट में वीडियो के थ्रू देखेंगे. Clause number 1.10 says that torsion reinforcement need not to be provided at any corner contained by edges over both of which slab is. अगर दोनों साइड से अगर स्लैब कॉन्टिन्यूस है तो टॉर्जन इन्फोर्समेंट को प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. अगर एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो 2 से ज़्यादा होता है तो हम इसको वन वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करते हैं. दिस इज स्टेटेड इन क्लॉज नंबर 1.11. दूसरा जो आपका टू वे स्लैब का टाइप था वो था अनरिस्ट्रेंड स्लैब. उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये था कि कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन था ये. तो कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन के लिए सिंपली सपोर्टेड डू नॉट हैव एडुकेट प्रोविजन टू रेजिस्ट टॉर्जन एट द कॉर्नर टू प्रिवेंट द कॉर्नर फ्रॉम लिफ्टिंग. मैक्सिमम मूवमेंट जो इसमें था, जो लास्ट टाइम था, उसमें सारे जो फॉर्मूले हैं सेम हैं. बस अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यू अनरिस्ट्रेंड स्लैब या फिर कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन के लिए यहाँ से लेते हैं. एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो ये है. अल्फा एक्स की वैल्यू को हम यहाँ से उठाते हैं. तो पर्टिकुलर बीच की इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए हम इंटरपोलेट कर लेते हैं. यहाँ पे 2.2 पे लिखा है कि 50% जो भी टेंशन इन्फोर्समेंट होगा वो हम that will be extended to the support also and remaining 50% should extend to within 0.1. जो आपका जैसे अभी प्रीवियस वाले केस में था सेम उसी तरीके से इसमें भी है. नोट का एक पॉइंट है कि फॉर टू वे स्लैब द डेप्थ इज अज्यूम्ड ऑन द बेसिस एल बाई डी के रेशियो के हिसाब से, हम डिफ्लेक्शन कंट्रोल के हिसाब से ही हम बढ़ते थे कि एज्यूम करते थे कोई डेप्थ. तो अगर स्पैन की लेंथ 3.5 मीटर से कम हो तो हमारी एल बाई डी का रेशियो एम एस बार अगर यूज़ कर रहे होंगे तो 35 होता है. अगर हम एच वाई एस डी बार यूज़ कर रहे होंगे तो इसमें 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसका मतलब 28 हो जाएगा जैसा कि कैलकुलेशन किया हुआ है यहाँ पे. तो फॉर कॉन्टिन्यूस स्लैब, इसी तरह से कॉन्टिन्यूस स्लैब के लिए अगर कॉन्टिन्यूस स्लैब है और 3.5 मीटर से कम की स्पैन है या फिर 3.5 मीटर तक की स्पैन है तो स्पैन बाय डेप्थ की रेशियो एल बाई डी होगा. यहाँ पे ब्रैकेट में एल बाई डी का रेशियो 40 होगा अगर माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हैं, और इसी 40 में 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर आप एच वाई एस डी या फिर एफ ई 415 एफ ई 500 इस तरह का यूज़ कर रहे होंगे. तो इसके बाद आपका शेयर चेक होता है. शेयर चेक सेम होता है जैसे अभी तक करते आए हैं. जैसे अभी वन वे स्लैब में भी किया तो डब्ल्यू वी यू जो आपका शेयर है इज इक्वल टू डब्ल्यू यू एल एक्स बाई 2. एल एक्स बाई 2 होता है इसमें. और नॉमिनल शेयर फोर्स इज अगेन एज पर द फार्मूला टाउ वी इज इक्वल टू वी यू अपन जो भी डिज़ाइन शेयर फोर्स होंगे उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे बी इंटू डी से. Effective depth in longer direction is less because the reinforcement along longer span is provided above the reinforcement provided along the shorter span. जो भी इफेक्टिव डेप्थ लॉन्गर डायरेक्शन में है वो कम होगा. क्यों कम होगा? क्योंकि जो भी आपका लॉन्गर स्पैन पे आप जो भी रिइंफोर्समेंट बिछाते हो तो वो शॉर्टर वाले स्पैन के ऊपर, शॉर्टर का स्पैन का जो सरिया है रिइंफोर्समेंट है उसके ऊपर बिछाते हो लॉन्गर स्पैन का. इस वजह से उसकी इफेक्टिव डेप्थ जो है थोड़ी सी कम हो जाती है. जाहिर सी बात है कम हो जाएगी. Now we will show some video. Let's say for this particular panel of the slab, okay, where 1, 2, 3 and 4, here my all panels are edges are the continuous in all directions. So this will be my case number 1 for interior panel. Case number 2, one short edge continuous. So if I'm talking about this particular panel, here is my longer edge and here is my shorter edge. So this will be my shorter and this will be the longer one. So here my one shorter edge is continuous. Okay.
So these are some span condition with panels. We will discuss one numerical also in our next part. So thank you for watching.